آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ مرکزی حکومت کی ہدایت پر شہر و اطراف میں منعقد کیے گئے رن فار یونٹی پروگرام، عوام نے بڑھ چڑھ کر لیا دوڑ میں حصہ اور جوش و خروش سے منائی آزاد ہندوستان کے اولین وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جینتی۔ میٹرو کمپریہنسو موبائلٹی پلان سے متعلق اہم میٹنگ منعقد، منصوبے کی تکمیل میں آ رہی دشواریوں اور دیگر معاملات پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ پروجیکٹ پر عمل آوری دشوار گزار مرحلہ مگر ناممکن نہیں، کہا مرکزی وزیر ڈاکٹر کرار نے۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے لیے ڈھورکن روڈ کی ایک جانب موجود قدیم اور گھنے برگد کے درختوں کا بے دردی سے کیا جا رہا ہے صفایا، ماحولیات دوست تنظیموں میں شدید ناراضگی، توجہ کا مطالبہ۔ اور دعا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ IJ فیسٹ کا ریاستی وزیر عبدالستار کے ہاتھوں شاندار افتتاح، ضلع کلکٹر آستک کمار اور دیگر سرکاری افسران نے کی ڈرگ فری سٹی مہم کی تشہیر۔ خبریں تفصیل سے۔ شہر و اطراف میں کئی مقامات پر آزاد ہندوستان کے اولین وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جینتی قومی یکجہتی دن کے بطور منائی گئی۔ آزاد ہندوستان کے اولین وزیر داخلہ مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کا یوم ولادت ہر سال ملک بھر قومی یکجہتی کے دن کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آج 31 اکتوبر کو بڑکن تعلقہ پیٹھن کے ڈیزائر اکیڈمی کی جانب سے رن فار یونٹی کا انعقاد کیا گیا۔ ابتدا میں مجاہد آزادی و مرد آہن سردار پٹیل اور بھارت کی آئرن لیڈی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی تصاویر پر پھول مالائیں چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیے گئے اور دوڑ کا آغاز کیا گیا۔ اس دوڑ میں بڑی تعداد میں نوجوان کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جبکہ اس موقع پر اسکولی انتظامی سمیتی کے صدر و سینئر صحافی نند کمار ویدیہ، کیندر پرمکھ سونونے، صدر مدرسین دانیکر، چتوڑکر، راشنکر، آصفہ میڈم و دیگر طلباء و اساتذہ اور ساکنان موجود تھے۔ اسی طرح تعلقہ سلوڑ کے بورگاؤں بازار میں بھی مذکورہ ایکتا دوڑ منعقد کی گئی، جس میں پنچایت سمیتی ممبر ستار باغبان، پولیس پاٹل یوگیش امریا، سرکل آفیسر بھاگیونت، تلاٹھی وشنو گولی و دیگر نامور افراد اور ساکنان موجود تھے۔ تعلقہ سلوڑ ہی کے گھاٹ نادرا میں بھی ایکتا ریلی منعقد ہوئی۔ اس ریلی کا اہتمام تحصیل دفتر کے ذریعے کیا گیا اور تلاٹھی جھالٹے کی موجودگی میں گاؤں کے سابق ضلع پریشد ممبر کوتک راؤ مورے، پنچایت سمیتی کے سابق ممبر رام چندر مورے، گاؤں کی سرپنچ کے نمائندے کے بطور ان کے شوہر یاسین تڑوی، نائب سرپنچ کرشنا مورے، اشوک اپا گڑوے اور دیگر سرکردہ افراد نے رہنمائی کی۔ سردار پٹیل کو خراج عقیدت کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ میٹرو کمپریہنسو موبائلٹی پلان سے متعلق ایک اہم میٹنگ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کرار کی صدارت میں منعقد کی گئی، جہاں ایجنسی کے ذمہ داران نے پاور پریزنٹیشن کے ذریعے اس منصوبے سے حاضرین کو واقف کروایا۔ واضح ہے کہ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کرار نے گزشتہ دنوں والوج اور شیندرا صنعتی علاقے کو جوڑنے کے لیے میٹرو پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اس پروجیکٹ کا کمپریہنسو موبلٹی پلان تیار کرنے کے لیے ایجنسی مقرر کی گئی۔ اس ایجنسی کے ذمہ داران نے پلان تیار کرنے کے بعد آج اس پلان سے متعلق پاور پریزنٹیشن دیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر ڈاکٹر کرار کے علاوہ MP امتیاز جلیل، MLA پردیپ جیسوال، MLA ہری بھو باگڑے، میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر چودھری، سٹی انجینئر سکارام پانجھڑے، بجلی سپلائی کمپنی اور ریلوے محکمے کے ذمہ داران کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور ریونیو کے افسران بھی شریک تھے۔ اس میٹنگ کے بعد ڈاکٹر بھاگوت کرار نے میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزیر بننے کے بعد وہ کئی مقامات کا دورہ کر چکے ہیں، مگر ہمارے شہر کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس والوج اور شیندرا صنعتی علاقے میں جو سہولتیں موجود ہیں وہ کہیں نہیں ہیں۔
इसके अलावा मुंबई और पुणे में सैचुरेशन आ चुका है और हमारा शहर महाराष्ट्र का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ सनती इलाके को मज़ीद फ़रोग़ देने के साथ साथ टूरिज़्म और शोबे तालीम की जदीद सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से शहर की साल 2052 की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसे पूरा करने के लिए 6,288 करोड़ रुपये दरकार हैं। वो जानते हैं कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो और यहाँ के अवामी नुमाइंदे इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि इस मंसूबे की तकमील के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया को 1 रुपया भी खर्च करना न पड़े और मरकज़ी व रियासती हुकूमत की जानिब से फ़ंड हासिल किया जाए। उन्होंने मज़ीद बतलाया कि वालूज सनती इलाके से शेंद्रा तक 24 किलोमीटर लंबा ब्रिज तामीर किया जाएगा और ब्रिज का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा कि वो सेंट्रल पिलर पर कायम किया जाएगा। इस ब्रिज की तामीर के लिए कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, कोई ज़मीन एक्वायर नहीं की जाएगी और शहर में पहले ही से मौजूद फ्लाईओवर्स को भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता 7 हिल और मुंडा नाके के फ्लाईओवर को नहीं बचाया जा सकता। मुताल्लिक़ा एजेंसी ने फ़िलहाल शहर के लिए न्यू मेट्रो की सिफारिश की है, जिसमें वक्त वाहिद में 170 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। मुताल्लिक़ा एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट की तकमील में आने वाली रुकावटों की भी निशानदेही की और बताया कि यहाँ पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए अलहदा ट्रैक्स नहीं हैं, फुटपाथ और पाथवे भी नहीं हैं। इन रुकावटों को और इन खामियों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी एएमसी इंतज़ामिया की रहेगी। डॉक्टर भागवत करार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए ज़िला औरंगाबाद के सभी अवामी नुमाइंदे मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी तरक्यात हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात करेंगे और दीगर मरकज़ी के अलावा रियासती वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला से भी नुमाइंदगी की जाएगी। डॉक्टर कराड़ के मुताबिक वालूज सनती इलाके से शेंद्रा तक मेट्रो के लिए 6 मकामात पर स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें शेंद्रा, कैम्ब्रिज, चिकलथाना एयरपोर्ट, SFS स्कूल के सामने, महावीर चौक, AS क्लब और ओएसिस चौक पर स्टेशन कायम करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पालिकेच्या माध्यमातून बसेस चालू केल्या, 3 वर्ष चालल्या आणि तो प्रोजेक्ट बंद झाला। त्यापुढे बसेसचं काय झालं मला माहित नाही, पण स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून या शहरामध्ये चांगल्या बसेस चालतात, आणखी इम्प्रूव्ह करायचं आहे आणि इम्प्रूव्ह होतील आणि हे फ्युचर औरंगाबाद, फ्युचर संभाजीनगर म्हणून आपण प्रयत्न करतोय आणि फ्युचर पुढच्या 25-30 वर्षाचा विचार करतोय आणि म्हणून आपल्याला जे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन केलेला आहे तो तुम्ही 100चा करून केलेला आहे, ठीक आहे, पण आता पुढे काय करणार हे आम्हाला एक्झॅक्टली असं पाहिजे, कारण कसं आहे आपल्याला 1 वाजेपर्यंत संपवायचं, एक्झॅक्टली कुठून कुठपर्यंत घेतले तुम्ही हे आम्हाला विचारलंय। नंबर 1 सर्व महत्वाचा जालना रोड जो आहे किंवा अदालत रोड जो आहे किंवा पुढे जाऊन कॅन्टोन्मेंट एरियामधून हा रोड जातो, इथं जागेचा काही प्रॉब्लेम येणार आहेत का? कारण एकदा प्लॅन सबमिट केल्यानंतर एकदा आपण मंजुरी दिली, काही सजेशन झाले बडे बायको, पण नंतर अडचण काही व्हायला नाही। वन्स इट इज सँक्शन इट शुड गो स्मूथ, दॅट इज अ प्रॉब्लेम। सो दिस मीटिंग इज कॉल्ड फॉर कुठल्या ठिकाणी लँडिंग आहे, तिथं जागा अक्विजिशनला काही प्रॉब्लेम येणार आहे का? पुढं एरियामध्ये एअरपोर्टची अथॉरिटी आली, तिथं काय प्रॉब्लेम आहे का? असं सगळं तुम्ही समजून सांगा, जे महत्वाचं आहे। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए औरंगाबाद पैठन रोड पर ढोरकिन से करीब मौजूद कदीम, घने और सायेदार दरख्तों का बेदर्दी से सफाया किया जा रहा है, जिसके सबब माहौलियात दोस्तों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। अयार है कि इस कदीम शाहराह पर ढोरकिन के करीब सड़क के बाजू निज़ाम के दौर के ये बड़ के दरख्त ढोरकिन की पहचान बने हुए थे। ताहम अब इस रोड से औरंगाबाद की वाटर सप्लाई की मुतवाज़ी पाइपलाइन गुजर रही है, जिसके सबब पाइपलाइन की तनसीब के लिए सड़क की एक बाजू के ये दरख्त काटे जा रहे हैं, जिसके सबब बरगद के दरख्तों का गांव ढोरकिन अपनी ये पहचान गंवा देगा। ये दरख्त अपनी उम्र के 100 से ज़ायद सालों से यहाँ कायम थे। इन दरख्तों के साये में 500 अफराद पर मुश्तमिल शादियों के काफ़िले भी ठहरा करते और सुस्ताते हैं। नादशस्ती के वारकरियों के पैदल काफ़िले यहाँ ठहरते हैं। ताहम अब ये सहूलत ख़त्म हो जाएगी। दरख्तों की इस कटाई पर माहौलियात प्रेमियों की जानिब से अफसोस का इजहार किया जा रहा है और तवज्जो का मुतालबा भी। जे झाडं होते ही बाप दादा पंजोबापासून होते, आज हे तुटून इतकं दुःख हो राहिलं आम्हाला, तरी आता नावीला प्रगती हो राहिली, त्याच्यामुळं आम्हाला
वाईटच वाटू राहिलं त्याच्यापासून. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में मौजूद ओपन स्पेसेस, आइलैंड्स और दीगर मकामात पर CSR व दीगर फंडिंग के ज़रिए ब्यूटिफिकेशन के लिए एक खुसूसी वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिस पर ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं. ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. ज़राए के मुताबिक NGO, सनतकारा और दीगर शहरियान जो शहर में मौजूद आइलैंड्स, ओपन स्पेसेस और दीगर मकामात को अपने अखराजात से डेवलप करवाना चाहते हैं, उनकी सहूलत के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी की हिदायत पर सिटीज़न इंगेजमेंट सेल कायम किया गया है. इस सेल पर स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO सौरभ जोशी, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य तिवारी को मुकर्रर किया गया है. इस सेल के लिए पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर फैज़ अली को दी गई है, जिसके लिए आइंदा हफ्ते AMC की वेबसाइट www.aurangabadmahapalika.org पर एक टैब फराहम करवाया जाएगा. इस सिटीज़न इंगेजमेंट /CSR टैब पर जाकर ख्वाहिशमंद शहरियान दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं और इस पोर्टल पर मौसूला दरख्वास्तों के मुताबिक इस सेल के अफसरान दरख्वास्त गुजारों से रब्ता करके आइंदा के मराहिल तय करेंगे. बजाज नगर इलाके में मुकीम शुमाली हिंद के बाशिंदों ने छठ पूजा का त्यौहार रिवायती अंदाज में मनाया. वालू सनती इलाके के बजाज नगर में यह त्यौहार हर साल की रिवायत के मुताबिक पूरे जोशो खरोश और खुशियों के साथ मनाया गया. यहाँ रहे कि वालू MIDC में कायम कई कंपनियों में महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों से भी दूर दराज के लोग अपने वतन को छोड़कर यहाँ काम धंधों के लिए बसे हुए हैं और ये लोग यहाँ अपने अहल ख़ानदान के साथ रहते हैं, जिनमें रियासत उत्तर प्रदेश के साकिनान की बड़ी तादाद मौजूद है. ये लोग अपने त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और मकामी साकिनान भी इन त्यौहारों में उनके साथ शामिल होते हैं. इसी के तहत गुज़िश्ता रोज़ 30 अक्टूबर को इन बैरून रियासत के लोगों ने अपना छठ पूजा का अहम त्यौहार मनाया. बजाज नगर के रामलीला मैदान पर सफाई मुहिम चलाते हुए पूजा के लिए खुसूसी हौज़ कुंड बनाया गया और उसमें पानी छोड़कर मर्द व ख़वातीन ने उभरते सूरज की पूजा की और दीगर मजहबी रसूम की अदायगी की. इस मौके पर तमाम लोगों ने एक दूसरे को छठ पूजा की मुबारकबाद पेश की. प्रियंका सिंह और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट मैं छठ पूजा बहुत ही अच्छे से मनाती हूँ. इसमें 4 दिन का व्रत रहता है. पहले दिन नहाए खाए का रहता है और दूसरे दिन खरना रहता है और तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और लास्ट दिन उगते सूरज को अर्घ देते हैं. ये बहुत ही पावन पर्व है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार का ही, ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है और ये एक आस्था का पर्व है. इसे हर कोई मना सकता है. छठ मैया की जय. 2-3 वर्ष पूर्वी करोना होतो तिथे म्हणजे कमी प्रतिसाद भेटला छठ पूजेला, लेकिन लोकांनी छठ पूजा केली. आता करोना से सगळे फ्री झालेले आहे, त्याच्यामुळे बहुसंख्यक लोक आलेले आहे. महिला लोग पुत्र प्राप्त की कामना के लिए उपवास ठेवती हैं. नंतर सकाळी संध्याकाळी सूर्याला अर्घ देती डूबते सूर्याला और सकाळी उगते सूर्याला अर्घ देऊन पूजा संपत्ती आहे. त्याच्यानंतर त्यांचा नाश्ता वगैरह होतो. दुआ फाउंडेशन की जानिब से आम खास मैदान पर मुनक़िदा IJ फेस्ट का इफ्तिताह रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया. इस मौके पर जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे. वाज़ेह है कि MP इम्तियाज़ जलील और अहमद जलील के दुआ फाउंडेशन की जानिब से IJ फेस्ट का एहतमाम आम खास मैदान पर किया गया है. ड्रग फ्री औरंगाबाद बनाने की गर्ज से इस IJ फेस्ट के तहत आम खास मैदान पर डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल और कुश्तियों के मुकाबले रखे जा रहे हैं. इसी तरह मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स के अलावा फूड फेस्टिवल भी रखा जा रहा है. IJ फेस्ट का इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया. इस मौके पर जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस ऑफिसर निसार तांबुली मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे. क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज़ पर MP इम्तियाज़ जलील रियासती वजीर अब्दुल सत्तार की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. जब इम्तियाज़ जलील से ज़मन में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो जानबूझकर आउट हुए हैं और अब्दुल सत्तार उन्हें कभी आउट नहीं करेंगे और वो हमेशा उन्हें जीत दिलाने में उनकी मदद करते हैं. इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए MP इम्तियाज़ जलील ने कहा कि बहुत जल्द आम खास मैदान पर एक खूबसूरत स्टेडियम कायम किया जाएगा और नौजवानों के इस ख्वाब को औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ही पूरा कर सकते हैं.
ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल का हमने आयोजन किया है। 20 दिन तक ये स्पोर्ट्स चलने वाले हैं, जिसके अंदर क्रिकेट, फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग और कुश्ती के मुकाबले होने वाले हैं। साथ ही साथ 5 दिनों के बाद यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा, प्लस एंटरटेनमेंट के। और इसके साथ ही एक रात जो है वो खवाली के लिए रहेगी और आखिरी दिन जो है वो कवि सम्मेलन और मुशायरा रहेगा। बेसिकली इस ग्राउंड के ऊपर इस तरह का गेम कोई खेल सकता है, ये ग्राउंड ऐसा भी बन सकता है, ये किसी को यकीन नहीं था उसमें। हमारी ख्वाहिश है कि आम खास मैदान के ऊपर एक भव्य स्टेडियम बने और आज यहाँ पर जितने भी बड़े नेता आए हैं, अधिकारी आए हैं, हमने सबसे अनुरोध किया है कि इस ग्राउंड के ऊपर एक भव्य स्टेडियम हो। इसकी ख्वाहिश यहाँ के तमाम लोगों की एक कई बरसों की ख्वाहिश है और हमें यकीन है कि अब्दुल सत्तार साहब हो या यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, ये सभी लोग एक साथ मिलकर आएंगे और यहाँ पर एक भव्य स्टेडियम के लिए हम सब मिलकर साथ में कोशिश करेंगे। देखिए, सत्तार भाई की बॉल के ऊपर मैं आउट नहीं हुआ, मैं सेल्फ आउट हुआ हूँ उसमें, क्योंकि सत्तार भाई मुझे कभी भी आउट नहीं करेंगे, वो मुझे जिताने ही वाले। खरं म्हणजे आजचा हा जो अनोखा असा नाविन्यपूर्ण एक कार्यक्रम खासदार इम्तियाज जलील यांच्या मार्गदर्शनाखाली या शहरामध्ये घेण्यात आलेला आहे। यामध्ये युवकांनी आणि विशेषतः तरुणांनी नशामुक्त राहावं, नशेपासून दूर राहावं, त्यांनी आज आपल्या देशामध्ये आणि विशेषतः राज्यामध्ये असेल किंवा जिल्ह्यामध्ये असेल, हे व्यसनचे जी काही सवय आहे हे व्यसन मुक्त व्हावं अशी स्पर्धा आमचे मित्र आदरणीय इम्तियाज जलील साहेबांनी ठेवलेली आहे। आणि याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी एकच आहे का जे तरुण आहे या तरुणांना स्पोर्ट्स आणि खेळाच्या माध्यमातून नशामुक्तीच्या मार्गाने न्यायचं आहे आणि यासाठी हे जे इतका मोठा भव्य दिव्य ग्राउंड तयार केला, खरं म्हणजे त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे का या ठिकाणी आज ज्या गोष्टीची गरज आहे तशी गरज आज या ठिकाणी साजरी केली। परत एकदा सन्माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहेबांना एक कार्यक्रम घेतला त्याबद्दल माझ्यातर्फे महाराष्ट्र सरकारतर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो। तालुका खुलदाबाद के राजा राय टाकली इलाके में GM पटेल बायो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ और रियासती वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया। GM पटेल बायो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की इस इफ्तिताही तकरीब में जिला भर की कई अहम व कलीदी शख्सियात मौजूद थीं। वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ ने इस मौके पर अपनी रहनुमाई में कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों ही की है और मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। रियासत के वजीर आला से मुतालिक भी कराड़ ने कहा कि एकनाथ शिंदे बजाते खुद एक किसान खानदान से हैं और उन्हें ज़राअत और मुज़ारिओं की तमाम मालूमात हासिल है और वो किसान मफादात के लिए कई काम कर रहे हैं। रियासती वज़ीर ज़राअत अब्दुल सत्तार ने अपनी रहनुमाई में इलाके के गन्ना किसानों को हिदायत दी कि वो टाकली में शुरू हो रहे इस कारखाने GM बायो एग्रो से पूरी तरह फ़ायदा उठाएं। सत्तार ने मज़ीद कहा कि किसानों को इस कारखाने से बेहतर भाव भी मिलेंगे और उन्हें खर्च भी कम आएगा। इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमानान खुसूसी में दीगर शुरका में ज़िला सेंट्रल बैंक के संचालक किरण पाटिल डोनगांवकर, साबिक मेयर बापू घड़ामोड़े, आदर्श बैंक के बानी सदर देवीदास अधाने, जावेद पटेल, असद पटेल, इफ्तिखार पटेल, एडवोकेट इश्तियाक पटेल, लोक सेवा संस्था के चेयरमैन जाकिर पटेल, नायब सरपंच गुलाब कुचे और दीगर कसीर तादाद अमायदीन व साकिनान मौजूद थे। नारेगांव राजेंद्र नगर इलाके के साकिनान बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं और वो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। इलाके के साकिनान का कहना है कि दस्तूर हिंद की दफ़ा 14-19 के तहत हर शहरी को यकसां बुनियादी सहूलतें मिलना उनका बुनियादी हक है। इसके बावजूद म्यूनसिपल इंतजामिया उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने तैयार नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा करने के बाद भी मुतालिका इंतजामिया ने अब तक वहाँ पीने के पानी की फराहमी के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसकी वजह से वो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नारेगांव, राजेंद्र नगर और कैसर कॉलोनी की गलियों में पुख्ता रास्ते नहीं तामीर करवाए गए, जिसकी वजह से वो लोग मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। इलाके के साकिनान दिवेकर, संजय, ढगेर, अहमद बी, देशमुक्ताई, SR पाटिल और एडवोकेट सुरड़कर योगेश ने यहाँ बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने का पुरजोर मुतालबा किया है।
हमको बिल्कुल पानी आता नहीं, लाइट की परेशानी है, पानी की परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है, रोड की परेशानी है हमारी को इधर रोड बरोबर नहीं है, पानी तो 10 साल से है नहीं यहाँ पर, पानी इधर आते ही नहीं, नालों को पानी भागना पड़ता हंडे ले लेके, बच्चे भी बड़े भी बूढ़े भी, छोटे छोटे बच्चे भागते पानी को हंडे कल से लेके। अब पानी भरना है क्या, कामों को जाना है कि क्या करना हमने, हम तो हाथ के मजदूर है, रोज के खाने पीने वाले, कामों को जाने वाले, पानी के वास्ते छुट्टी हो जाती है हमारी। 10 साल से पानी नहीं, इधर पाइपलाइन है ही नहीं, इधर पानी किसको है नहीं इधर इतनी पूरी गली में, पाइपलाइन डालो यहाँ, नल लाइट का देखो, लाइट भी पहुँच जाती घड़ी घड़ी, रोड नहीं है बरोबर, पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। हाँ पानी है नहीं, बहुत भागना पड़ता पानी। याकडे फक्त इलेक्शन आलं तेव्हाच लक्ष दिलं जातं आणि इतर वेळेस आमच्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं। इथं मुलांपासून तर म्हाताऱ्यांपर्यंत लोकांना पाणी ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस घेऊन जावं लागतं आणि ते इथून नाही तर ते रोडपासून ते पाणी घेऊन येत आहे आणि यामुळे काही लोकांचा इथं मृत्यू पण झालेला आहे। त्यामुळे आम्हाला फार खेद वाटतं या गोष्टीचा की अशा आज आपण स्वातंत्र्य मिळून एवढे वर्ष झाले तरी आपण या गोष्टींना सामोरे जातोय, असे व्हायला नाही पाहिजे आजच्या युगात। फक्त इथला लोकांचा प्रश्न असा आहे की जी लाईन आहेत आमची, जी छोटी प्रकारे टाकलेली आहे ती मोठी करून द्यावं अशी आमची प्रशासनाला विनंती आहे। तरी समस्या सोडवण्यात यावी ही माझ्यातर्फे नम्र विनंती आहे। जय हिंद, जय भारत। नळ असून सुद्धा पाणी येत नाही। हो का? वर्ष टॅक्स पूर्ण भरतो, नळ पावती भरतो सगळं, पण तरी पण पाणी येत नाही नळाला। समजा आता 500 मीटर जाणार, 500 मीटर येणं, समजा जेव्हापासून इकडे झोपडपट्टी बनली तेव्हापासून पाणीच नाही आहे। आता ते तर नाही सांगू शकत, पण ते लई दिवसांनी पाणी नाही आम्हाला इकडे। 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5-6 महिने, 5-6 वर्ष पाणीच नाही इकडे। लव मैरिज के बाद अजियत देने वाले शौहर को अपने दोस्त की मदद से बीवी ने कत्ल कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात से शहर में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। नाजरीन, ऐसे महसूस होता है कि जैसे इन दिनों शहर में कत्ल की वारदात का सिलसिला ही जारी है। शहर के वाल्मी इलाके में शोलापुर धुलिया हाईवे से मुत्तसिल 27 अक्टूबर को एक अनजान शख्स की लाश पाई गई थी। पोस्टमार्टम से वजाहत हुई थी कि महलूक को कत्ल किया गया था और बाद अज़ां शहर पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू कर रखी थी और इसी जांच पड़ताल में पता चला तो पुलिस ने मकतूल की मुश्तबा बीवी को तहवील में लिया और पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बीवी ही ने अपने एक दोस्त की मदद से ये कत्ल अंजाम दिया था। मुलजिमा बीवी का नाम सारिका पाटनी और उसके दोस्त का नाम सागर सावड़े बतलाया गया है। 12 बरस पहले सारिका और मकतूल विजय ने मोहब्बत की शादी की थी। ताहम पिछले कुछ अरसे से विजय मुसलसल शराब पीकर बीवी को अजियतें दे रहा था। सारिका उसकी अजियतों से तंग आ गई थी और बिलाखिर उसने अपने शौहर को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया और सागर की मदद से उसे कत्ल कर दिया। इस मामले में सातारा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तालुका पैठन के थेरगांव इलाके में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें खेत में पानी की मोटर शुरू करने गया एक नौजवान बिजली का शॉक लगने से फौत हो गया। थेरगांव का साकिन 22 साल नौजवान पीर की सुबह 10 बजे के करीब खेत की सिंचाई के लिए पानी की मोटर शुरू करने गया था। ताहम मोटर के स्टार्टर या बटन में पहले ही से करंट उतरा हुआ था, जिसके सबब जूं ही उसने बटन को हाथ लगाया, गणेश को 3 फेज लाइन का जोरदार झटका लगा और वो शॉक लगने से ज़मीन पर गिर पड़ा था। उसके रिश्तेदार जब खेत पर गए तो उन्होंने ये मंजर देखा और फौरी गणेश को पाचोड़ के देही अस्पताल भिजवाया, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नौमान शेख ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। अस्पताल के सामने उसके घर के अफराद और गांव वाले बड़ी तादाद में जमा हो गए थे। पाचोड़ पुलिस थाना में इत्तफाकी वारदात का इंदराज कर लिया गया और मजीद जांच एपीआई गणेश सुरोसी की रहनुमाई में बीट जमादार किशोर शिंदे कर रहे हैं। साबिक एमएलए हर्षवर्धन जाधव के खिलाफ एक खातून के साथ मारपीट करने का मामला कन्नड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। अपने बयानात के सबब हमेशा सुर्खियों में रहने वाले साबिक एमएलए हर्षवर्धन जाधव की परेशानियों में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। एक खातून के साथ जोरदार मारपीट करने से मुताल्लिक उनके खिलाफ कन्नड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जाधव की खातून दोस्त ईशा झा ने उनके साथ मारपीट किए जाने की शिकायत की है और सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हर्षवर्धन जाधव ने उनके साथ मारपीट की है, उनके बाल पकड़कर खींचे
और चेहरे पर मुक्कों की बारिश की। इसलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। खातून का कहना है कि वो थक चुकी हैं। मुझ पर हमेशा ही शक किया जाता है। मेरा नाम हर किसी के साथ जोड़ा जाता है। मुझे लगा था कि वो बदल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ बहुत मारपीट की, इसलिए अब मैं कन्नड़ छोड़कर जा रही हूँ और कभी पलटकर वापस नहीं आऊँगी। इस ज़मन में जाधव से बात करने की कोशिश की गई, मगर उनसे राब्ता न हो सका। आज हर्षवर्धन जाधवने मला एवढं मारले, केस धरून केस ओढून मुक्का मार. मी दिले पोलीस कंप्लेंट. मला नाही माहित काय होणार, पण आता मी दमली आहे. माझ्यावर संशय करणे, माझं नाव प्रत्येकाशी जोडणे. घरात एक मुलगा होता, त्याच्याशी माझं नाव जोडलं. स्वतः जे करतात, स्वतः बाहेर काय काय घाण करतात. मला वाटत होतं की बदलून जातील, पण नाही. आज एवढं मारहाण केली मला. बस जरा. आता मी चाललीये कन्नड सोडून. आता कधीच नाही परत ना. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर शहर और अतराफ में मुनक़िद किए गए रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम, अवाम ने बढ़ चढ़ कर लिया दौड़ में हिस्सा और जोश खरोश से मनाई आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। मेट्रो कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइलिटी प्लान से मुताल्लिक अहम मीटिंग मुनक़िद। मंसूबे की तकमील में आ रही दुश्वारियों और दीगर मामलात पर किया गया तबादला ख्याल। प्रोजेक्ट पर अमलावरी दुश्वार गुजार मरहला मगर नामुमकिन नहीं, कहा मरकजी वजीर डॉक्टर करार ने। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए ढोरकिन रोड की एक जानिब मौजूद कदीम और घने बरगद के दरख्तों का बेदर्दी से किया जा रहा है सफाया। माहौलियात दोस्त तंजीमों में शदीद नाराजगी, तवज्जे का मुतालबा। और दुआ फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा आईजे फेस्ट का रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों शानदार इफ्तिताह। जिला कलेक्टर आसिफ कुमार और दीगर सरकारी अफसरान ने की ड्रग फ्री सिटी मुहिम की तशहीर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं खाजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।